Good morning, student. Today we will discuss basics of economics for class +1. Let's start from the basic concept difference between the economics and economy. Economics. It is a social science concerned with allocation and proper utilization of resources to achieve economic growth and stability. It's mean every economy face the problem of limited sources. So all the sources should be utilized in that manner so that an economy can grow, continue, and whenever an economy achieve the target of economic growth, maintain the that growth. So economics means manage the resources. Another definition of economics, it is a social science in which consumer wants maximum satisfaction, producer wants maximum profit, and a nation wants maximum सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि हर व्यक्ति के पास और हर देश के पास सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं. अगर आप कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर की इनकम क्या है, लिमिटेड है. हर कंज्यूमर की एक प्रयास रहता है कि वो अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करे ताकि वो स्पेंड करने से अपनी जो सेटिस्फैक्शन को राइज कर सके, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या है प्राप्त कर सके. उसी तरह प्रोड्यूसर के पास सोर्सेज लिमिटेड हैं. प्रोड्यूसर अपने सोर्सेज को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहेगा ताकि गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट. एंड ए नेशन लाइक इंडिया के पास भी सोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड सोर्सेज को वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एलोकेट करेगा ताकि उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसका बेनिफिट्स क्या है, रीच टू एवरीवन. तो इसलिए सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इज ए टारगेट ऑफ अ नेशन. दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स. देयर आर टू डिफरेंट डेफिनेशंस. You can manage a definition of economics according to you also. That is next concept, economy. Economics and economy. Economics is concept. Economy is a place or a system where people get employment opportunities to fulfill their desire, like economy of USA, economy of India, economy of Jakarta also. Economy means it is a system or place where people get employment opportunity to fulfill their wants, like economy of India and USA. Next concept, difference between micro and macroeconomics. पीछे चलते हैं. In 1933 एक इकोनॉमिस्ट है रेगनर फिशर्स, जिसने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रो. क्योंकि 1933 से पहले एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर, तो वहाँ पर ऑल द सिस्टम विच आर यूजिंग बाय द इकोनॉमिस्ट टू ग्रो द इकोनॉमी आर फेल्ड. सो J.M. Keynes इंट्रोड्यूस डिफरेंट कंसेप्ट फॉर माइक्रो एंड मैक्रो. सो इन 1933 रेगनर फिशर्स डिवाइड इकोनॉमिक्स into micro and macro. What is micro? Microeconomics. It deals the function of economics as a particular unit, like demand and supply concept. So it is known as a price theory. Particular unit means effect of any concept, not for whole economy, effect on individual person, like when price of goods increase, demand fall. Effect on individual means कि when price of goods increase, individual buy less goods. As well as supply concept. Supply concept means when price increase, supply fall. Price increase, supply rise. Means different concept means it is a negative relationship between price and quantity demand, and supply concept means price and supply are positive related. तो particular units को जब study करते हैं, that is a पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका इफेक्ट होल इकोनॉमी पर ना पड़कर इंडिविजुअल व्यक्ति पर पड़ता है जो इसको यूटिलाइज करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एज ए होल और एग्रीगेट वेरिएबल लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. सो इट इज़ नोन एज ए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. मैक्रो होल मीन्स होल और
एग्रीगेट वेरिएबल मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पर ना पड़ के होल इकोनॉमी में पड़ता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इसका इफेक्ट एक सिंगल पर्सन पर नहीं पड़ेगा, होल इकोनॉमी में पड़ेगा। पॉवर्टी का इफेक्ट है वो एक इकोनॉमी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पर नहीं पड़ेगा, होल इकोनॉमी इफेक्टेड होगी। नेशनल इनकम राइज होगी तो पर कैपिटा इनकम राइज होगी। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। effect of that elements not on single, effect on whole economy, so it is known as a macroeconomics. Basic difference between the micro and macro. Microeconomy known as a price theory. क्यों कहा गया प्राइस थ्योरी? इसका मीनिंग है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज डिटरमाइंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. फैक्टर प्राइसिंग एंड गुड्स प्राइसिंग लाइक प्राइस ऑफ wheat, price of potato are determined in microeconomics on the basis of demand and supply, and factor pricing like salary of employees, wages for labor determined in the market on the basis of demand and supply. So factor pricing and goods price is determined in microeconomy, so it is known as a price theory. Macroeconomics is known as a income and employment theory. It's mean income and employment theory is a main criteria of any economy. All economy make a policies to increase the income and employment, means basic needs of the economy to rise employment and income of the people, so economy grow. So effect of these items not on a single, on the whole economy, so it is known as a income and employment theory. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने माइक्रो को पढ़ा, हमने मैक्रो को पढ़ा, दोनों के ने हमने एक ही चीज़ को देखा कि सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। तो सोर्सेज लिमिटेड हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी चॉइस की, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज़ है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज़ ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्क्वायर मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूज। स्क्वायर मीन मीन्स सोर्सेज लिमिटेड हैं, डिमांड जब ज़्यादा है, सप्लाई क्या है कम है। स्क्वायर मीन्स demand of sources is greater than supply. Not only sources scarce have alternative use like milk है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है उसको वहीं यूज़ करेंगे, हमें एक को चूज़ करेंगे, दूसरे को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। उसी तरह लैंड है, एक लैंड पर आप फार्मिंग भी कर सकते हो, इंडस्ट्री भी लगा सकते हो, बंगला भी बना सकते हो, लेकिन क्या है वन टाइम क्या है, सिर्फ वन एक्टिविटी क्या यू कैन डू। सो सोर्सेज आर नॉट स्कायर विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। सोर्सेज स्कायर भी हैं और अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं। इस कारण से क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है, क्योंकि डिमांड्स क्या हैं अनलिमिटेड है। ड्यू टू दी अनलिमिटेड डिमांड्स सोर्सेज आर स्कायर विच हैव अल्टरनेटिव यूज़ इस क्रिएट ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि कौन सी डिमांड को पहले फुलफिल किया जाए, कौन सी डिमांड को क्या है बाद में फुलफिल किया जाए। तो ये कॉल्ड ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनदर कंसेप्ट हमने इसमें दो वर्ड यूज़ किए हैं, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, लाइक डिमांड ऑफ वुड एंड ईटेबल गुड्स। देखा होगा मार्केट के आजकल लॉकडाउन चल रहा है, गुड्स की शॉर्टेज हो रही है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ठीक है। एंड डिमांड ऑफ वुड, डिमांड ऑफ वुड मीन्स जो फर्नीचर्स की डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने के साथ सप्लाई नहीं बढ़ती। इस कारण से क्या है स्कार्सिटी मीन्स रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है कम है, चाहे प्राइस का इवन भी मे बी जीरो, प्राइस में भी जीरो बेस। जैसे एयर है, एयर की डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन उसका प्राइस नहीं है, लेकिन सप्लाई इतनी नहीं हो रही है, जिस कारण से डिसीज फैलते जा रहे हैं। मीन्स स्कार्सिटी इन एवरीवेयर। अल्टरनेटिव यूज़, जो सोर्सेज है वो सिर्फ स्कायर नहीं है, उसके अल्टरनेटिव यूजेज भी हैं, यानी कि एक ही गुड्स के मैनी यूजेज हैं। लाइक है वाटर, वाटर के बहुत सारे यूज़ हैं, पेपर, पेपर के बहुत सारे यूजेज हैं, मिल्क है उसके बहुत सारे यूजेज हैं, लैंड है उसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो इस कारण से क्या है सोर्सेज नॉट ओनली स्कायर विच हैव अल्टरनेटिव यूज आल्सो। इसी से क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इसके 3 कंसेप्ट हैं। फर्स्ट अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। व्हेन एवर वन डिमांड इज़ फुलफिल सेकेंड टेक प्लेस। आप आज आपको आपके पेरेंट्स ने साइकिल गिफ्ट कर दिया है तो नेक्स्ट बर्थडे पर आप डिमांड करोगे हमें स्कूटर चाहिए या बाइक चाहिए, तो मीन्स डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती। इस कारण से क्या है डिमांड्स क्या है अनलिमिटेड हैं, और अनलिमिटेड डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास सोर्सेज का है
स्कायर भी हैं और अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं, इसलिए क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है अराइज होती है। अब आता है सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो ये थी हैं बेसिकली, जिसके अंदर आता है सेंट्रल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमी को हम सोशल इकोनॉमिज्म भी बोल देते हैं, जैसे कि लाइक चाइना के अंदर है सोशलिज्म है। तो सेंट्रल इकोनॉमी का मीन्स क्या है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन इट एंड कंट्रोल बाय सेंटर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव मैक्सिमम सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। लाइक चाइना, पहले ये रशिया में होती थी, रशिया ये सोशलिज्म इकोनॉमी थी। आज वर्ल्ड के अंदर एक ही इकोनॉमी है जहाँ पर क्या गवर्नमेंट टेक डिसीजन, नो एनी इंडिविजुअल डिसीजन टेक प्लेस, दैट इन चाइना। तो जहाँ पर क्या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो सेंटर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट लेती है, ताकि इनका जो एलोकेशन है वो मैक्सिमाइज सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को देकर किया जा सके, ताकि रिच और पुअर के गैप को क्या है रिड्यूस किया जा सके। इसे बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमी और सोशलिज्म। नेक्स्ट है इसमें मार्केट एंड कैपिटलिज्म। मार्केट और कैपिटलिज्म इकोनॉमी, लाइक यूएसए है, जापान है, यूके है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन लेस पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल टेक ए डिसीजन फॉर फुलफिल देयर ओन डिज़ायर। तो इसलिए मार्केट इकोनॉमी मीन्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन इट एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेज टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। लाइक यूएसए, एक शॉपकीपर है, वो अब मार्केट में इसलिए शॉप ओपन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। उसके लिए उसके डिसीजन के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, वो सेल्फ डिसीजन लेता है। इसलिए क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका मेन टारगेट क्या होता है, इन्वेस्ट इन दैट मैनर्स सो दैट दे गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसलिए मार्केट के अंदर देखो रोज़ न्यू मोबाइल्स एंड एप्स इंट्रोड्यूस होते हैं, किस लिए, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वह जब मार्केट के अंदर नई चीज़ आती है तो उसके प्राइस हाई होते हैं और प्रोड्यूसर अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इंडिया है, वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन इट एंड कंट्रोल बाय बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया के अंदर वन हैंड क्या है, गवर्नमेंट टेक डिसीजन लाइक सिविल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट की PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, इनके पीछे मेन जो पर्पज़ है वो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है, ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स का जो बेनिफिट है रीच टू एवरीवन। एंड अनदर हैंड क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, आपकी अपनी शॉप्स हैं, अपने अपने बिजनेस हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या है सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, इन्वेस्टर के ऊपर से वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो अधिक से अधिक क्या प्रॉफिट अर्न कर सके। इसलिए इंडिया क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें वन हैंड प्राइवेट सेक्टर है, सेकंड हैंड क्या है पब्लिक सेक्टर है। इससे रिलेटेड डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अपने विचार दिए हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये कंसेप्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स सेड इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। यानी कि इस पार्ट के अंदर इकोनॉमिक्स का सिर्फ वही हिस्सा लर्न किया जाता है, वही ज़्यादा स्टडी किया जाता है जिसका संबंध समस्या क्या है, क्या थी, क्या होगी। यानी कि समस्या को सिर्फ ढूंढा जाता है। लाइक पॉवर्टी इन इंडिया राइजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीज डे बाय डे। ये क्या है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। इसके अंदर सल्यूशन नहीं दिया गया, कोई सुजेशन नहीं दी गई है कि समस्या को कैसे हल करना है, इसके लिए क्या प्लानिंग की जरूरत है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, लेकिन ऑल द इकोनॉमिस्ट आर नॉट एग्री ऑन दैट पॉइंट। दे सेड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव आल्सो। नॉर्मेटिव मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, यानी समस्या क्या है, क्या थी, क्या होगी। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बोला कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन को तेज़ी बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली प्लानिंग लॉन्च कर दिया। उसी तरह क्या है कि पॉवर्टी तेज़ी से बढ़ रही है, पॉवर्टी के लिए नरेगा लेके आए, तो मतलब सोल्यूशन नहीं आया। मीन्स अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए जो इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट
सुजेस्ट करेगी ताकि समस्या को हल किया जा सके। दैट इज़ ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स and normative economics, it is related to what is, what was, what will be. Economic problem, no any value judgment to solve problem, but in normative economics it is related to what ought to be, there are a value judgment to solve the problem. Like मैंने एग्जांपल दिया कि पॉपुलेशन है या पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। That is called a normative economics. Normative and positive. These are basic concept of the economics. If any students have any problem, can approach to me directly by phone and directly by the WhatsApp message, and I can solve your problems. Thank you.